हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो टुडे वेलकम टू माय क्लास अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3। तो इन लास्ट लेक्चर आई कैन टेल यू द properties of triangles like angle sum property and exterior angle property of a triangle. So today we are going to solve exercise 6.3 and on the basis of these two properties. Okay, so let's start our exercise. The exercise question number 1 is in there is an figure that is given like this. Okay, this is T, this is S, this is P, this is Q and this is R. This is Q and this is R, right? And it is given that this angle is 135 degree and this angle is 110 degree and we have to find this angle PQR. Okay, so now given is angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree and we have to find angle PRQ. Okay, so now let us take this is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3. Fine. तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका. लाइक एंगल 1 प्लस angle SPR is equals to 180 degree by linear pair angles because these two angles are formed on a straight line. Okay, that is angle 1 is plus 135 degree is equals to 180 degree and angle 1 is equals to 180 degree minus 135 that is equals to 45 degree. angle 1 आ गया आपका 45. Similarly angle 2 plus angle PQT that is equals to 180 degree, this angle and this angle again by linear pair angles. So the angle 2 plus 110 degree is 180 degree, so angle 2 is 180 degree minus 110 that is 70 degree. Okay, this is 70 degree and we have to find angle R. So now as we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree by angle sum property. That means all angles of a triangle, sum of all angles of a triangle is 180 degree. That means angle 1 is 45, angle 2 is 70 plus angle 3 this is equals to 180 degree, that is 115 degree plus angle PRQ is equals to 180. That means PRQ is equals to 180 degree minus 115. That is angle PRQ is equals to 65 degree. So I hope all of you can understand how we can find out the value of angle R here. Okay, by using angle sum property. So now come to the question number 2. In question number 2, there is a figure is given like this. This is XYZ and this is O and this angle is complete angle is 54 and this angle is 62. Okay, this complete angle is 54 degree. So now it is given that given is angle X is equals to 62 degree and angle XYZ is equals to 54 degree and YO and ZO are the bisectors of this and this angle. That means YO bisect this complete Y angle and XO divides ZO divides this angle. That means if we can say this is 1, this is 2, this is 3 and this one is 4. Okay, so now it is given that OZ bisects angle Z and OY bisects complete angle Y. Okay, so here it is angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. Fine. So we have to find the value of this angle. We have to find OZY and YOZ. ये वाला एंगल बताना है बेटा एंड कौन सा बताना है OZY.
ओ जेड वाई दैट इज एंगल 1. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? दैट इज एंगल वाई ओ जेड एंड एंगल ओ जेड वाई दैट इज एंगल 1. ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ओके, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखेंगे अगर हम बेटा, तो क्या हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. Now angle x is 62 degree, angle y is 54 degree and angle z is equals to 180 degree, right? So 54 plus 62 that is 116, angle z and angle complete z is equals to 180 minus 116, तो कितना आ गया बेटा? That is 64 degree. Okay, and as we know that angle 1 is equals to angle 2, this implies एंगल z इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 1. देखिए दोनों इक्वल है तो दोनों के सम के बराबर क्या है? z है, तो z का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 1. ओके, तो एंगल 1 क्या है बेटा? दैट इज हाफ ऑफ एंगल, सॉरी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल z. ये छोटा है ना, ठीक है? तो आपको z की वैल्यू पता है बेटा कितनी है? 64. तो ये कितना आ गया आपका? 32 डिग्री. और एंगल 1 क्या है आपका? एंगल ओ जेड वाई. तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 32. एंड एज वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी. देखिए इन स्मॉल ट्रायंगल ओ जेड वाई एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल दिस. ओके, तो एंगल 1 कितना है बेटा? जल्दी से बताइए. अभी हमने निकाला है 32 डिग्री. एंगल 3 कितना है? एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल कंप्लीट वाई एंड एंगल ओ दैट इज एंगल वाई ओ जेड. तो 32 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 54 प्लस एंगल वाई ओ जेड is 180. That means YOZ is equals to 32 plus this is 27. 32 plus 27, 32 plus 27, 79. So this is 180 degree minus 79 that is equals to 1 degree. Okay. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एंगल 3 जो है वो एंगल y का पूरा कंप्लीट हाफ है. तो आप एंगल 1 की इस तरह लिख लीजिए वैल्यू ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, ये एंगल z का हाफ है और ये आपका एंगल y का हाफ है. तो एंगल y का हाफ क्या हो जाएगा? 54 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 27 डिग्री. तो ये भी 27 है और ये भी 27 है. ठीक है. तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है. आपको ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल्स आपको गिवन है. उन्हीं ट्रायंगल्स का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Question number 3 that is like this. Okay, this angle is 35 degree. This angle is 53 degree. This angle is D, E, C, A, B. Okay, and in this question AB is parallel to DE. Given is AE AB parallel to DE. This side is parallel to this side. And angle BAC is equals to BAC is 35 degree and angle CDE is equals to 53 degree. And we have to find angle DCE. We have to find this angle DCE. Find करना है हमें angle DCE. Say this is X. तो ये मान लिया हमने क्या है X. ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन. देखिए एज वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई. ए बी अगर इसके पैरेलल है तो ए ई इज ट्रांसवर्सल. क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना. और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए बी ई डी ए ई डी. देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो बी ए ई की वैल्यू कितनी है आपकी? 35. तो एंगल ए ई डी की वैल्यू भी कितनी जाएगी? 35. तो एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. ओके,
तो नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल में आपका एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके तो एंगल डी कितना है बच्चों, दैट इज 53. एंगल ई कितना है आपका 35. एंगल एक्स क्या है आपका, दैट इज डी सी ई इज इक्वल टू 180. दैट मीन्स एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू. तो दिस इज 88 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री. इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नोट करिए आराम से, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4 we have a figure like this. This is P R T S Q and this is 75 degree and this is 95 and this one is 40 degree. Okay, so now when we have to find एंगल SQT, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है बेटा. ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे. पहले मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली निकाल के बता देता हूँ. से दिस इज एंगल 180. देखिए ये तीनों का सम कितना होगा बेटा 180, तो ये कितना हो गया 145, 135 ऐड करके तो ये एंगल कितना आ गया आपका 45. ये एंगल 45 तो ये भी कितना हो गया 45. अब इन दोनों का सम कितना हो गया 120. अब 120 को 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60. तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट. तो लुक एट हियर, वी डोंट नो दीज एंगल्स, ये हमें एंगल्स नहीं पता. ठीक है, तो फाइंड करते हैं. देखिए इन ट्रायंगल पी आर टी, इस वाले ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स 95 प्लस 40 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180. तो नाउ एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री. ओके, एंड एंगल PTR is equals to angle STQ, vertically opposite angles. That means angle STQ is equals to 45 degree. तो ये भी आपका कितना आ गया 45 आ गया और ये भी कितना आ गया आपका 45 आ गया. तो नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा है हमारे पास STQ. नाउ एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल S की वैल्यू कितनी है 75, एंगल T की कितनी है 45 और एंगल Q आपको फाइंड आउट करना है. तो आप दोनों का सम कर लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज 60 डिग्री. दैट मीन्स एंगल SQT इज 60 डिग्री. इजी है. तो लास्ट 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जल्दी से देखेंगे. एंड लास्ट 6 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो उसके लिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी. तो ना क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. In question number 5, the figure is given like this. Okay, this is like this. This is P, Q, R, S and T. This angle is 65. This angle is Y. This angle is 90. This angle is X. And this angle is, I don't know this angle. And we have to find X and Y. And given है आपको कि PQ is parallel to SR and PS is perpendicular to ST. ओके, ये दोनों लाइन्स आपकी परपेंडिकुलर हैं. ओके, कर दें. तो देखिए, if this is angle X, this one is also X, but alternate interior angle because this line and this line is. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, तो नाउ PQ is parallel to ST and QS is transversal. अगर हमारी QS क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल X is equals to एंगल QSR. ओके, तो ये भी क्या हो गया आपका
एस, क्यू एस आर. ओके, ये भी आ गया आपका, इजी है. अब देखिए, दिस एंगल इज 90. ओके, दिस इज एक्स, दिस वन इज ऑल्सो एक्स. नो प्रॉब्लम टू एनीवन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. देखिए इस ट्राइंगल में, तीनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S is equals to 180 degree. That means 90 degree plus x plus y is equals to 180 degree and x plus y is equals to 90 degree. This is equation number 1. तो इन दोनों का सम तो हमें पता चल गया कितना आने वाला है, 90 आने वाला है, राइट. एंड दिस एंगल इज गिवन, दैट इज 28 डिग्री. फाइन. तो देखिए एंगल QRT, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, is equals to x plus 28, x plus 28 by exterior angle property. Exterior angle property क्या थी बेटा? The exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles. तो इसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये दोनों वाले हैं, करेक्ट है. तो एंगल x plus 28 is equal to 65. तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 65. तो x plus 28, एक्स की वैल्यू आ गई 65 माइनस 28 डिग्री. तो कितना आ गया 65 माइनस 28, दैट इज 37 डिग्री. तो 37 डिग्री आ चुका है आपका एक्स. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई कितना था बेटा? 90 था. तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 37. तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 37, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री. तो y की वैल्यू भी आ गई आपकी और x की वैल्यू भी आ गई. अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं उसको किस तरीके से करेंगे. ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. Okay, this one, this is P and this is T, and this is question number 6. And this angle is equals to this, and this angle is equals to this angle. Okay, this is given, and we have to prove that angle QTR is equals to half of angle QPR. QTR is equals to half of angle this QPR. ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज x, दिस इज y. ओके, तो वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y. ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दिस. ओके, एंड गिवन इज angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. Okay, so now look at here, this in this triangle PQR, this complete angle is exterior angle. Okay, so in triangle PQR, angle PRS is equals to the sum of two co-interior angles. That means PQR plus angle QPR. ठीक है बेटा, अब देखिए PRS किस किस से मिलकर बन रहा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 से. और PQR किस किस से मिलकर बन रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 से. और ये क्या आपका x है, राइट है. अब हमें पता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 बराबर है, तो मैं एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ. एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 बराबर है, तो 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल x. तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x क्या हो गया बेटा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2. दैट मीन्स 2 इज कॉमन. एंगल 4 माइनस एंगल 2 के इक्वल हो गया हमारा x. ओके, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो. सॉरी x नहीं y, QPR तो हमारा y है. फाइन, तो ये आ गया आपका y. अब हमें निकालना है, देखिए अब इन ट्रायंगल TQR
TQR में देखिए बेटा दिस एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल x, राइट, एंगल 2 प्लस एंगल x बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एंगल 4 माइनस एंगल 2, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप 4 माइनस 2 की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल x रख सकते हैं। तो मीन्स 2 इंटू 4 माइनस एंगल 2 था, तो ये हो गया आपका 2x के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई y बाय 2 के बराबर। एंगल x क्या था आपका, QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो इसको आराम से नोट करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर।